الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر بدھ بعد نماز عشاء ہمارے ہاں درس قرآن کی نشست ہوتی ہے، جس میں ہم قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا درس بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 12 اور آیت 97 to 101 5 آیات آج کے درس میں شامل ہیں، جو آپ کو سکرین پر یا وائٹ بورڈ پر لکھی نظر آ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ قل من کان عدوا لجبریل، قل کہہ دیجئے، من جو شخص، کانا کا معنی ہے، عدوا عداوت رکھتا، لجبریل جبریل سے، کہہ دیجئے اس شخص کو جو جبریل سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، فإنہ پس بے شک وہ جبریل نزل اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں اس قرآن کو علی قلبی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، بإذن اللہ اے بأمر اللہ اللہ کے حکم سے، وہ قرآن مصدقاً تصدیق کرتا ہے، لما اس کتاب کی بین یدیہ جو ان کے پاس ہے، وہدن وہ قرآن ہدایت ہے، وبشرا اور وہ قرآن بشارت ہے، للمؤمنین اہل ایمان کے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ یہودی کل بھی اور آج بھی حضرت جبریل سے عداوت رکھتے ہیں اور حضرت میکائیل سے انس رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حضرت میکائیل تو بارش برساتے ہیں، رزق لاتے ہیں، خوشی کا پیغام لاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، خوشحالی آتی ہے، جبریل کی وجہ سے تو ہم پہ عذاب اترتا ہے، وہ تو عذاب لے کے آتے ہیں، اور ہمارے بڑوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے جبریل سے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، عبداللہ بن سوریہ ایک یہودی عالم، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کے پاس کون وحی لے کے آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جبریل۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر میکائیل وحی لے کر کے آتے تو پھر ہم ایمان لانے کا سوچتے، جبریل تو عذاب لے کے آتا ہے، لہذا ہمیں اس کی وحی قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا جبریل سے عداوت کا کیا مطلب؟ جبریل تو ہمارے کہنے پہ وحی لاتا، وہ وحی قرآن لائے تب بھی، وہ عذاب لائے تب بھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے کہنے کا پابند ہے، تو جبریل سے عداوت کا کیا مطلب ہے؟ تو جبریل تو واسطے کا کام دیتا ہے، وہ تو اللہ کا سفیر اور نمائندہ ہے، جو اللہ تعالیٰ اسے کام کہتے ہیں وہ کرتا ہے۔ ایسے ہی میکائیل بھی اللہ کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ اسے جو کام کہتے ہیں وہ کرتا ہے، دونوں اللہ کا حکم مان رہے ہیں، لیکن ایک تمہاری خواہش پوری کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا، اس لیے تم اپنی خواہش کی بنیاد پر ایک سے محبت کرتے ہو، دوسرے سے نفرت کرتے ہو، جبکہ وہ تو دونوں اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہیں، تعمیل کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہی کہا گیا کہ آپ ہر اس شخص کو کہہ دیں جو جبریل سے عداوت رکھتا ہے کہ جبریل کا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن کو نازل کرتا۔ اچھا، یہاں کہا گیا کہ حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کو نازل کرتے ہیں۔ عموماً ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے کان سنتے ہیں، جب صرف کان سنتے ہیں تو وہ بات ضروری نہیں کہ دل تک بھی پہنچے، وہ ایک کان سے نکل کے داخل ہو کے دوسرے کان سے نکل گئی، لیکن حضرت جبریل صرف حضور کے کان کو کلام نہیں سناتے تھے، وہ دل میں بھی اتارتے تھے اللہ کے حکم سے۔ یہی وجہ ہے ہمارے نبی کو قرآن بھولتا نہیں تھا، تو اس لیے کہا کہ وہ دل پر قرآن کو نازل کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے نازل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ تو ان سے عداوت کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ اگلی آیت اس کی مزید تفصیل بھی آ رہی ہے۔ پھر قرآن کی 3 صفات یہاں ذکر کی ہیں اللہ تعالی نے۔ نمبر 1 مصدقا لما بین یدیہ،
कि कुरान से तुम्हें चिढ़ क्यों है? कुरान तो जो किताब तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करता है। वो कहता है मूसा अलैहिस्सलाम बरहक नबी हैं, अपने जमाने के सच्चे नबी थे। मूसा अलैहिस्सलाम की जो सारी बातें हैं, तालीमात हैं, कुरान उनकी तायीद करता है। दूसरी सिफत क्या कुरान की? हुदन, कुरान हिदायत है, किताब हिदायत। हर आदमी को सही रास्ता दिखाने वाली किताब कुरान ही है। और तीसरी सिफत कुरान की बुशरा, बशारत है लिल मुमिनीन, ईमान के लिए। अब कुरान तस्दीक भी करता है, कुरान हिदायत भी है। कुरान तस्दीक करता है तौरात की भी, इंजील की, पिछली सारी किताबों की। कुरान हिदायत दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए, लेकिन खुशखबरी कुरान की दुनिया के तमाम इंसानों के लिए नहीं है। खुशखबरी सिर्फ मानने वालों के लिए, दावत सबके लिए। अब फिर दो किस्म के लोग होंगे, जो दावत को मानेंगे, जो नहीं मानेंगे। जो मानेंगे उनके लिए बशारत है, जो नहीं मानेंगे उनके लिए अल्लाह ताला का अज़ाब है। मुख्तलिफ जगह पर उसका तज़किरा आता है। तो बहरहाल कहा गया कि जिब्रील से दावत का कोई माना नहीं। जिब्रील तो सिर्फ वास्ते का काम करते हैं, अल्लाह के हुक्म से वही उतारते हैं। और जिस कुरान का तुम इनकार करते हो, उस कुरान की 3 खुसूसियात ये हैं: तस्दीक करता है, हिदायत है और बशारत। अब जो शख्स कुरान की हिदायत को नहीं लेगा वो गुमराही के रास्ते पर। तो इसलिए जो सही रास्ते पर आना चाहता है, भटका हुआ आदमी, जो राह जिसका गुम हो चुका है, गुम राह, तो वो सही राह पर आ जाए कुरान की हिदायत के जरिए। और जब वो सही रास्ते पर कुरान की हिदायत के साथ आएगा तो फिर वो सही मानों में साहिब बशारत भी होगा, नहीं जिसको बशारत दी गई। आगे अल्लाह ताला कहते हैं मन कान अदुव्व लिल्लाह, जो शख्स अदावत रखता है अल्लाह से, फरिश्तों से, रसूलों से, जिब्रील से, मिकाइल से, फ़इन्नल्लाह अदुव्वन, तो बेशक अल्लाह भी उससे अदावत रखता है अल्लाह ताला लिल काफिरीन, काफिरों से। अब यहां उन्होंने सिर्फ जिब्रील से अदावत का इजहार किया था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अदावत असल में तुम्हारी जिब्रील से नहीं, वो जिसका हुक्म लाता है अदावत तुम्हारी उससे है। तो याद रखो, जिब्रील से अदावत का मतलब अल्लाह से अदावत है। जिब्रील की नाफरमानी का मतलब अल्लाह की नाफरमानी है। रसूल की नाफरमानी का मतलब अल्लाह की नाफरमानी है। कुरान की नाफरमानी का मतलब अल्लाह की नाफरमानी है। फरिश्तों की नाफरमानी, इनकार, ये भी अल्लाह की नाफरमानी। तो जो शख्स अदावत रखता है अल्लाह से और फरिश्तों से, अच्छा यहां मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये वाव औ के माने में है, यानी अदावत रखता है जो शख्स अल्लाह से या उसके फरिश्तों से या उसके रसूलों से या जिब्रील से या मीकाइल से, किसी एक से भी अदावत रखता है। तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह काफिरों से अदावत रखता है, यानी जो किसी एक से भी अदावत रखेगा वो काफिर है, और काफिरों से अल्लाह की अदावत। इसमें यह बात भी बता दी गई कि मुसलमान होने के लिए सिर्फ कलमा पढ़ना काफी नहीं है, तमाम अकायद का सही होना जरूरी है। बिलफर्ज अगर कोई शख्स कुरान को माने, हदीस को माने, कोई शख्स तमाम फरिश्तों को सही माने, बरहक माने, और वो किसी एक फरिश्ते का इनकार कर दे तो वो काफिर है। तो कुरान कह रहा है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है जिसने कलमा पढ़ लिया मुसलमान है, फिर वो जी चाहे बकवास करता भी है कुरान के बारे में, अंबिया के बारे में। ये जितने लोग सोशल मीडिया पे इस वक्त बैठे हैं वो कहते हैं हम मुसलमान है। जी मुसलमान है, क्या सबूत है? आपकी बातें गवाही दे रही है कि आप काफिर हैं। अब खुले हम अंबिया का इनकार करते हैं, उन पर इल्जाम लगाते हैं, और फिर भी आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कुरानी तालीमात का इनकार करते हैं। तो मुसलमान होने के लिए तमाम अकायद का कुरान और हदीस की रोशनी में सही होना जरूरी है। कहीं भी पांव फिसला तो गया। तो बेशक अल्लाह ताला अदावत रखता है लिल काफिरीना, काफिरों से। और ऐसा बंदा जो फरिश्तों का इनकार कर दे, अल्लाह का कर दे, रसूल का कर दे, एक का कर दे, सब का कर दे। अब यहां 2 फरिश्तों का नाम लिया है, हालांकि यही फरिश्ते पीछे आ गए और मलाइकतिही। यहां क्यों नाम लिया? इसलिए कि उन्होंने भी उन 2 फरिश्तों का नाम लेकर के बात कही थी, तो अल्लाह ने उनका नाम लेकर ही जवाब दे दिया। ठीक है। और फिर उसके बाद अगली बात है वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। अल्लाह ताला कहते हैं और यकीनन हमने नाजिल की इलैका आपकी तरफ आयातिन बय्यिनात, वाज़े आयात। इस वाज़े आयात में कुरान पूरे का पूरा शामिल है, नबी करीम की मौजिज़ात शामिल हैं, नबी करीम की तालीमात शामिल हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने वाज़े अहकाम, आयात, वाज़े दीन आप पर नाजिल किया। वमा यकफ़ुरु बिहा, और नहीं इनकार करता इस दीन का, इन आयात का, इल्लल फ़ासिक़ून, मगर खुले नाफरमान।
जो खुले नाफरमान हैं, बागी हैं, बगावत करने वाले लोग हैं, वो इनकार करते, वो नहीं मानते। तो देखें हमारे माशरे के अंदर फिस्क बिल्कुल आम है, खुले हम बागी हैं, नारा लगाने का हम आशिक रसूल है और गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, नारा हम लगा देंगे, पट्टियां बांध लेंगे और पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। नमाज का वक्त है तो हजरत एक ही नहीं मिलता। इमाम के पीछे ईद वाले दिन भी एक बंदा ढूंढने से नहीं मिल रहा, अकेला इमाम इंतजार कर रहा है, हजरात कब तशरीफ लाएंगे अहले ईमान कि इनको नमाज पढ़ाई जाए। तो खुले आम जो नाफरमानी करते हैं वही लोग आयात का इनकार करते हैं। एक तो है इनकार की ये सूरत के खुले आम काफरों की तरह कहते मैं नहीं मानता, एक सूरत यह है कि जुबान से तो ना कहे कि मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उसका अमल बताता है कि हजरत मुनकर है। देखिए कोई किसी भी हुकूमत के अंदर अगर एक शख्स ये कहे कि मैं पाकिस्तान का वफादार हूं, वो वर्दी भी पहन ले, सारे टैग भी लगा ले, हर जगह लिखवा ले मैं वफादार वफादार, मैं पाकिस्तान का वफादार हूं, और सारे काम उसके पाकिस्तानी कवानीन की बगावत के अंदर हैं, तो कौन सा दुनिया का अक्लमंद बंदा ये कहेगा या बाकी ये मुल्क पाकिस्तान का वफादार? हर शख्स कहेगा ये बागी है। यानी आमाल फैसला करेंगे कि इस शख्स का नजरिया क्या है, आमाल से फैसला होगा। तो हम अपने माशरे के हाल देखें, अपना हाल देख लें, हमारे आमाल क्या बताते हैं, हम क्या है। तो खुले आम जो फासिक लोग हैं वही अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं। अब कुल्लमा आहदु आहदन नबदहु फरीकुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। अल्लाह ताला फरमाते आवा, क्या ऐसा नहीं है, क्या ये हकीकत बात नहीं है? कुल्लमा जब भी आहदु इन्होंने आहद किया, आहदन कोई एक आहद भी, नबज़हु फेंक दिया उस आहद को, फरीकुन एक फरीक ने, मिनहुम इनमें से, बल अक्सरुहुम ला युमिनून बल्कि इनमें से अक्सर तो ईमान ही नहीं रखते उस पर। यानी इन बनी इसराइल का खास तौर पर तज़किरा हो रहा है कि बनी इसराइल ने जितने भी आहद किए हैं, कितने जो इन्होंने पूरे किए हैं। हम 5वें रुकू से पढ़ते आ रहे हैं और 12वां रुकू चल रहा है, इन्हीं बनी इसराइल का तज़किरा आ रहा है। तो जो जो आहद इन्होंने किया इन्होंने इनकार कर दिया। और पिछले सबक के अंदर ये बात आई थी कि इनका जो दावा है कि हम तौरात में ईमान लाते हैं, उसकी हकीकत क्या है, ये उस पर भी ईमान नहीं लाते। हालांकि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 आयत के अंदर ये बात है कि पिछले अंबिया से भी आहद लिया गया, उनकी उम्मतों से भी आहद लिया गया कि जब भी आखिरी नबी आएंगे तो उन पे ईमान भी लाओगे, उनका ताउन भी करोगे, उनकी मुआमलत करोगे, उनके काम में उनके साथ शरीक होगे। लेकिन ये खुले आम इनकार कर रहे हैं। तौरात एक साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि आखिरी नबी की निशानियां क्या है, हत्ता के सूरत फतह के आखिरी आयत के अंदर आता है कि जो सहाबा किराम हैं उनकी सिफात भी तौरात और इंजील में मौजूद है। मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील, इन सहाबा किराम की सिफात तौरात और इंजील में लिखी हुई है। हमारे नबी का नाम ले लेके बताया कि आखिरी नबी आएंगे, उनको ईमान लाना है, लेकिन अक्सर हम ला युमिनून, अक्सर ईमान नहीं लाते। यहूदी ईमान लाए भी नहीं, गिनती की 2, 4, 5, 10 थे जो मुसलमान हो। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, ये तो इनकी बात की गई थी ओवरऑल इस आयत के अंदर, आयत नंबर 100 में, ठीक है। लेकिन ये जो अब आयत आ रही है 101, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास तज़किरा किया जा रहा है, वलम्मा और जब। यानी अगर आप इस आयत को इस पस मंजर में समझें कि सारे यहूदी इस इंतजार में थे कि आखिरी नबी आएंगे, हम उन पे ईमान लाएं। पीछे हम पढ़ के आइए कहा करते थे मुशरिकीन को, तुम लड़ लो हमारे साथ, जब आखिरी नबी आएंगे उनके साथ मिलकर तुम्हारी तबीयत साफ करेंगे हम। लेकिन जब आखिरी नबी आ गए, वलम्मा और जब जाअहुम आ गए इनके पास रसूल, एक रसूल मिन इंदिल्लाही। अच्छा, रसूल जो है ना, इसके ऊपर जो ये तन्वीन लगी हुई है ये ताजीम के लिए है। यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि ये तो प्रॉपर नाउन नहीं है, इसमें मारिफा नहीं है, तो इसमें आप रसूल से कैसे नबी करीम मुराद ले सकते हैं? यहां तो कोई भी रसूल हो सकता है। तो हम उनको कहेंगे तन्वीन, जैसे ये नाकिरा की जो तन्वीन होती है ये ताजीम के लिए भी आती है। तो इसका माना एक आजमत वाले रसूल जब आ गए, उनके पास एक अजीम रसूल मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुन जो तस्दीक करते हैं, वो रसूल तस्दीक करते हैं, लिमा माहुम उस किताब की जो इनके पास है, नबज़ फरीकुम फेंक दिया एक फरीक ने, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब उन लोगों में से, ऊतु जिनको दी गई अल किताब किताब, जिनको किताब दी गई, अहले किताब जो कहलवाते हैं, उनमें से एक फरीक ने क्या कर दिया, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को नाबाजा फेंक दिया,
डाल दिया वरा ज़ुहूरिहिम, अपने पसे पुश्त। ये वरा ज़ुहूरिहिम, पसे पुश्त जो है ना, ये मुहावरा है अरबी का। इसका मतलब होता है किसी चीज की तरफ तवज्जो न करना, ध्यान न देना। तो हमने भी कुरान की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जैसे यहूदियों ने किताब को पसे पुश्त डाल दिया, वैसे हमने डाला हुआ। हम कितना कुरान को समझते हैं, पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं, उसके सीखने के लिए हमने टाइम निकाला है, कितने पैसे हमने लगा दिया कुरान सीखने के लिए। दुनिया का हर फन सीखने के लिए पैसे लगाते हैं। आजकल आप देख लें, दुनिया में कौन सा स्किल है ऑनलाइन, जो आप जी वो फ्रीलांसिंग सीख लें, आप फलां चीज सीख लें, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, इतने पैसे दें, आपको कोर्स बना बनाया मिल जाएगा, आप इतने सीख कर इतने डॉलर कमा लेंगे। ठीक है, लेकिन कुरान सीखने के लिए हमारी एनर्जी लग रही है, हमारा पैसा लग रहा है, हमारा टाइम लग रहा है, हम कहते हैं टाइम नहीं, हमारे पास तो और काम है। तो ये पीठ पीछे अल्लाह की किताब को फेंकना, ये यहूदियों का काम है। अगर हम भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो हदीस में आता, फिर जो बंदा जिस कौम की मुशाबहत रखेगा वो उन्हीं के साथ हो। तो हमारी मेहनतें कहां जा रही हैं? कअन्नहुम ला यअलमून, गोया इनको पता ही नहीं कि ये भी कोई जरूरी काम है, इसकी भी कोई अहमियत है, पता ही नहीं। आज यकीन जानिए, ये यहूदियों के बारे में उतरने वाली आयात 100% हमारे ऊपर फिट बैठती। और फिर हम ये कहते हैं हम तो पक्के मुसलमान हैं, अल्लाह की मदद के वादे हैं। कहां गए वो? हम पे अल्लाह की मदद नाजिल नहीं हो रही। हम बदनाम जमाना कौम बन गए, हमारी माइशत तबाह, हमारी सियासत तबाह, हमारा सब कुछ सिस्टम तबाह हो रहा है। अल्लाह की मदद कहां से आए भाई? और फिर अल्लाह के नबी की सही हदीस है कि इन्नल्लाह यरफअ बिहादिल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आखरीन। अल्लाह ताला इसी कुरान के जरिए एक कौम को ऊंचा करेगा तो इसी कुरान के जरिए नीचा भी गिराएगा। किसको गिराएगा? जो इस अमल नहीं करेंगे, जो अमल करेंगे उनको ऊंचा उठा ले जाएगा। वो अरब का मुआशरा जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद कहता है कि तुम अला शफा हुफरति मिनन नार, तुम जहन्नम के गड़े के किनारे पे ठहरे हुए थे, फान क़ज़ाकुम मिनहा, अल्लाह ने तुम्हें बचाया। वो बदनाम जमाना मुआशरा जब उसने इस किताब को सीने से लगाया, अपने दिलों में बसाया, अपने घरों में रचाया बसाया, तो अल्लाह ताला ने इनको कैसा उरूज दिखाया। आज भी हम उनका नाम लेकर सीना ठोक के बात करते हैं, देखा हज़रत उमर फारूक कैसे थे, उनका जमाना कैसा था। तो वहीं पर हम ये भी देखें हमारा जमाना कैसा है, हम क्या कर रहे हैं। तो कअन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह की किताब को ऐसा पीठ के पीछे फेंका, गोया इनको पता ही नहीं है इसकी अहमियत क्या। कुरान भी पढ़ना है, सीखना है। यकीन जाने आज हम अपने अपने घर का अगर मुहासबा और जायजा लें तो हम में से कितने लोगों को आता है। मसलन मैं अगर लूँ तो मेरे घर में से मुझे आता है, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कितनी फिक्र की है, अपने घर में रहने वाले भाई के लिए, बहन के लिए कितनी फिक्र की है, अपने वालिदैन, बूढ़े वालिदैन के लिए, दादा दादी के लिए कितनी फिक्र की है, कि इस तहरीक को मैंने आगे कहां तक बढ़ाया। तो हमें इसमें काम करने की जरूरत है। तो इसमें एक बात समझने की यहां यह भी है जो हमारे लिए दरस इबरत है, अल्लाह से जुड़ी हुई किसी चीज से भी नफरत नहीं करनी, उससे अदावत नहीं रखनी, चाहे वो फरिश्ता हो, चाहे कोई किताब हो, चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, और अल्लाह ने जो हमारे नसीब में लिख दिया बस उसी पे ईमान रखना है। और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते सारे काम करते हैं, यार कोई फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से बाहर कोई काम नहीं कर रहा। कुरान तस्दीक करता है किसकी? पिछली चीजों की भी, इस दौर की भी तस्दीक करता है, कब्र की भी तस्दीक करता है, हशर की भी तस्दीक करता है, सब बातों की तस्दीक करता है। कुरान हिदायत भरी किताब है, कुरान बशारत भरी किताब है मोमिनीन के लिए, और हिदायत सब के लिए। बाद मुसलमान ये समझते हैं कुरान तो सिर्फ मुसलमानों की किताब है, ये गलत बात है। कुरान सबकी किताब है, कोई काफिर भी पढ़ना चाहे तो पढ़े। हजरत उमर फारूक ने नहीं पढ़ा कुरान, हाँ उसके कुछ आदाब है, उन्हें ये बताना चाहिए भाई अगर आप कुरान पढ़ना चाहते हो इसके कुछ आदाब है, आप उन आदाब की रियायत रखो, पढ़ लो, तर्जुमा पढ़ो, तफसीर पढ़ो, मुताला करो, तुम्हें समझ आ जाए, कलमा पढ़ लेना, मुसलमान हो जाना। और उसके बाद ये है कि अगर कोई शख्स किसी का अकीदा ठीक नहीं, उस अकीदे में से अकीदा तौहीद खराब है, अकीदा तौहीद, मलाइका पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किसी का अकीदा तौहीद खराब हो, अकीदा रिसालत खराब हो, मलाइका पर ईमान या अकीदा मलाइका किसी का खराब हो, या कोई और अकीदा खराब हो, कोई एक खराब हो या सारे खराब हो, वो शख्स काफिर है। और जो दुश्मनी रखेगा इनमें से किसी से भी, एक है कि सिर्फ अकीदा खराब है काफिर है, एक फिर दुश्मनी भी रखता है, तो वो याद रख ले फिर अल्लाह भी उससे दुश्मनी रखता है।
वो अल्लाह का दोस्त नहीं, अल्लाह उससे दोस्ती नहीं रखता। और फिर ये बात है कि अल्लाह की ये आयात, ये कुरान, ये दीन, ये अल्लाह ने नाजिल किया है, और इसका मुखालिफ और इसका इनकार करने वाला वो फासिक आदमी है, चाहे वो जुबान से कहे या ना कहे। अल्लाह का ऐलान यही है कि कुरान और दीन का इनकार करने वाला चाहे जुबान से इनकार करे या पूरी अमली जिंदगी इसके इनकार से भरी पड़ी हो, वो फासिक आदमी है। और फिर आगे ये बात कही कि इन यहूदियों का हाल ये है, इन्होंने जब जब भी अल्लाह से अहद किया तो अहद को तोड़ा है। और फिर आखिर में ये बात कही कि इनके पास रसूल आए तो इन्होंने उस अहद को भी तोड़ दिया जो किया था आयत नंबर 81 में सूरह आल इमरान में, और तौरात में भी था और इंजील में भी था, व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, सूरह सफ के अंदर आता है। इनकार कर दिया, ईसाई नहीं मानते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्होंने पस से पुष्ट डाला है कुरान को, तो कुरान को पस से पुष्ट डालना, किताब अल्लाह को पस से पुष्ट डालना, ये यहूदियों की रविश है, हम मुसलमानों की नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इसी तरह इस सिलसिले के साथ हमें कायम रहना है, और इसी तरह इस सिलसिले के साथ जुड़े हुए और जो बाकी लोग हैं हमें उनके साथ भी वाबस्ता रहना है, उनके साथ भी जुड़े रहना है। और इस काम को जब हम एक तहरीक की सूरत में लेकर के चलेंगे, सारे लोग मिल बैठ के इसको मिशन बनाएंगे अपनी जिंदगी का, फिर इसका असर भी ज्यादा होगा। मुआशरे में बहुत से लोग इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब तो उलमा ने इसके ऊपर बहुत कुछ काम किया है, मजीद कुरान को आसान बनाया समझना, ग्रामेटिकली आसान बनाया है। इसी तरह अब जो है इस्लामाबाद के अंदर, अब इदारे का नाम मुझे भूल गया, उन्होंने किताब निकाली है 3 जिल्दों के अंदर, 1500 उसकी कीमत है, वो मैंने मंगवाई है। इसलिए इसे मंगवाई कि मैं अपने घर वालों को सिखाऊंगा, और वो बिल्कुल आसान अंदाज में है, कुछ हिस्सा मैंने उसका पढ़ा है। तो उसमें है कि कुरान, उसके 5-6 लेवल है, कोई शख्स उसको करे तो 6 महीनों के अंदर कुरान को समझ सकता है। एक आम आदमी अगर कोई पढ़ा लिखा है, अरबी से मानूस है, कुरान से पहले थोड़ा बहुत उसे उनसियत है, तो वो और भी जल्दी सीख सकता है। इस तरह इस सिलसिले की वाहिद कड़ी जिसके तनाजुर में हम सारे जमा हैं, वो डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह। आप उनके दुरूद सुने, हम भी सुनते हैं, मतलब उनके लबो लहजे से लगता है तो वाकई कुरान के दाई थे। कि मुआशरे में घर घर में कुरान, फ़हम कुरान का सिलसिला बंध जाए, जुड़ जाए, और लोग कुरान को सीखने वाले बने। तो हमें हर ऐसे आदमी के साथ मोहब्बत रखनी है, हर ऐसे आदमी को सुनना है जो कुरान की तरफ दावत देता है, और ये हम में से हर एक के जिम्मे, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल अहम ये है जो शायद आपके जहनों में कभी पैदा हुआ हो, कि हमें कहीं कुरान की दावत जहां कहीं भी हो रही है, मतलब हम भी कर रहे हैं, तो उसकी कोई तासीर माशरे में नजर नहीं आती। मतलब मैं अगर 50 साल से जुड़ा हूं एक तंजीम के साथ, एक तहरीक के साथ, लक्षण मेरे वही हैं जो पहले थे। दर्स में, हर दर्स में मैं शिरकत करता हूं, मैं जुमे में शिरकत, दर्स में शिरकत, दर्स कुरान, दर्स हदीस में शिरकत, मैं हूं वैसे का वैसा ही। सिर्फ मैंने अपनी दाढ़ी रख ली एक, और उसके बाद जो है तस्बीह आ गई, मेरे सिर्फ उन दाढ़ी वालों के साथ मेरा उठना बैठना हो गया। जैसे लूटमार की आदत मेरी पहले थी 50 साल पहले, आज भी मैं वैसे लूटमार हो जाता। वजह यह है कि ये तो इल्म है, जिंदगी तब्दील होती है अमल से। अमल हम करते हैं ना, हमें उसकी कोई फिक्र है। हम कहते हैं कि वो कोई मसला नहीं है, बस हम एक सिलसिले से जुड़ गए, बस इतना काफी हमारे निजात के लिए। नहीं, अमल करना है। कुरान के अगर हुकूक को हम समझते हैं, ईमान रखते हैं, तो फिर कुरान का चौथा हक यह है कि कुरान पे अमल किया जाए, ईमान लाया जाए, तिलावत की जाए, समझा जाए और अमल किया जाए। 5वां यह है फिर कुरान के पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो हमने जो आयत पढ़ी, हम अज़म कर लें, मैं इस पे अमल करूंगा, अपने घर वालों को अमल करवाऊंगा। तो जब इस जज्बे के साथ हम ये काम करेंगे और अल्लाह से दुआएं करेंगे, या अल्लाह मैं पढ़ रहा हूं, मैं दीन से जुड़ा हुआ हूं, और मैं अपनी बात करूं कि अल्लाह मैं दर्स देता हूं हर हफ्ते, और मेरा यह आज़म होता है कि मैं कुरान की आयत पर अमल करूंगा, लेकिन अल्लाह मैं कमजोर इंसान से, मुझसे बाज़ का गलती हो जाती है, मैं कोताही कर जाता हूं, मैं किसी हुक्म पे अमल नहीं करता, तो फिर अल्लाह से दुआएं करें और रोए अल्लाह के सामने, अल्लाह से हिदायत मांगे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक शॉर्ट क्लिप वायरल हुआ है, वो आपने भी सुना होगा कि जो बंदा अल्लाह से हिदायत की दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता। अगर कोई हिदायत का मुतलाशी है तो अल्लाह उसकी मौत से पहले उसको सिरात मुस्तकीम पर चला के छोड़ेंगे। तो जो लोग तलबे हिदायत में सच्ची तलब के साथ लगे रहते हैं, अल्लाह ताला उनको
ہدایت دکھا دیتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، ہم بھی پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر لے آتے ہیں۔ تو اصل یہی ہے کہ ہم سچے طریقے سے اس سلسلے کے ساتھ جڑیں، اور جہاں کہیں بھی لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس طرح جہاں ہم جس اسکول سے جڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہ اسکول سر افتخار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں دے، ان کی وجہ سے، ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ہم بھی یہاں بہت سے لوگ جڑ گئے، یقین آپ لوگ بھی اس کا حصہ ہیں یا اس سے پہلے کے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس کام کو آگے پھیلانا، جس کام کو لے کر کے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس میدان میں آئے، ہمیں بھی اس کام کو لے کر آگے چلنا ہے، اور ہم نے اس کام کو بڑھانا ہے۔ جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ بات سمجھ لی کہ میری ذمہ داری یہ ہے، تو ہمیں بھی یہ بات سمجھنی ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے، اور پھر اس پہ عمل کریں۔ یہ ہمارے اندر کوتاہی ہے، مثلا اگر میں اب میری کمیونٹی اگر 50 لوگوں کی ہے، میرے 50 دوست ہیں، 50 کے 50 عالم ہیں، کوتاہی کیا ہے ہمارے اندر کہ ہم عمل نہیں کرتے؟ تو ہم ایک دوسرے کو یاد دلائیں۔ سورۃ العصر میں آتا ہے وتواصوا بالصبر، اور اس سے پہلے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، بتائیں بھائی یہ تو غلط بات ہے، یہ تو آپ نے غلط بات کہہ دی، یہ آپ نے غلط رویہ اپنا لیا، یہ آپ نے کیا تو غلط کیا۔ اور ظاہر ہے حق کے راستے میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کریں، بھائی صبر کر، کوئی مسئلہ نہیں، دین حق آزمائش آئی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کے ساتھ جوڑنے کی، صحیح معنوں میں اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا تن من دھن، اپنی نسلیں اس سلسلے پہ قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے آج ہم اپنے آپ کو اس سلسلے میں قربان کریں گے، اللہ ہمارا نام بھی، ہماری نسلوں کو بھی زندہ رکھے گا۔ اس صحابہ کرام نے لگا دی زندگی، آج دیکھیے ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ صحابہ کرام عزیز ہیں، اپنے گھر والی خواتین سے زیادہ صحابہ کرام کی عورتیں، ازواج مطہرات عزیز ہیں، کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے میں جملہ بھی برداشت نہیں ہوتا، جبکہ ہم دوسرے کی بہن کو گالی دیتے ہیں، وہ ہماری بہن کو گالی دے جاتا ہے، اور ہم ہنس پڑتے، کوئی مسئلہ نہیں، میرا دوست تھا گالی دی۔ لیکن یہ بات ہم صحابہ کرام کے بارے میں کیوں برداشت نہیں کرتے؟ یہ محبت قرآن پر اپنا مال جان قربان کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے دلوں میں ان کی ڈال رہے۔ تو آج ہم یہ رویہ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے وعدے ہیں، بشارتیں اللہ تعالیٰ کی، وہ سب کی سب پھر ہم ان سے مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، میرا کہنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔